Okay, hello everyone, and good evening to all of you, and welcome to all in Manish classes. So, this is video lecture series on metal forming process, and in this lecture, I'm going to discuss with you wire drawing process, and this is lecture number 12. So, once again, welcome to all. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh, and I'm mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch. And my latest gate rank is IR 192 in GATE 2020. And I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam. And I also mentored 10,000 plus students across the India, online as well as offline. So once again, welcome to all and good evening to all of you. Sorry, now yes. Uh, Today I'm going to discuss with you drawing operation, correct, and especially wire drawing और बार ड्राइंग, करेक्ट. वायर ड्राइंग, बार ड्राइंग और ट्यूब ड्राइंग तीनों ही सेम प्रोसेस से ड्रॉ किए जाते हैं, करेक्ट है दोस्तों. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज ड्राइंग प्रोसेस. सो लेट्स सी हियर. ड्राइंग इज एन ऑपरेशन इन विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार, rod or wire is reduced by pulling it through die opening, correct. Now you can see here this is very much similar process with extrusion process, except in this drawing process we apply pull force. yes or no. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वायर को पुल कर रहे हैं. इज इट क्लियर, इंस्टेड ऑफ पुशिंग. हमने एक्सट्रूजन में इसको पुश किया था अगेंस्ट द डाई, और यहाँ पे क्या करें हम, अगेंस्ट द डाई इसको पुल करें. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग ऑपरेशन एंड एक्सट्रूजन प्रोसेस. ऑल दो रिमेनिंग सारी चीजें क्या यहाँ पे सेम होगी. once again you can see here, when we pull this material in between the dies, then the material get compressed. yes or no, like this you can see here. और कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होगा दोस्तों. yes or no, is it clear. And again we reduce its cross section, correct. So this is a basic drawing process. is it clear, this is basic principle of drawing process. Now in drawing process the plastic flow is caused by combination of, you can see here इस drawing process में जो deformation हो रहा है या plastic deformation हो रहा है दोस्तों, it is a combination of applied by tensile force and compressive force arising from the reaction of the metal with die. yes or no. यहाँ पे आप क्या करो, एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करो इसको पुल करने के लिए दोस्तों, और यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड सिंपली यू कैन से दिस इज रिएक्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द डाई, करेक्ट. यस आर नो, कुछ इस तरीके का. तो यहाँ पे आप देखो दिस इज कंप्रेसिव फोर्स एंड दिस इज टेंसाइल फोर्स. यस आर नो. तो ये जो प्रोसेस है ये टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है. यस आर नो, याद रखोगे. जबकि हमने प्रीवियसली प्रोसेस, अगर मैं एक्सट्रूजन की बात करूं दोस्तों, तो वहां पे आपने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया था. यस आर नो, पुश कर रहे थे हम. तो ऑब्वियसली जब पुशिंग फोर्स एक्ट होगा देन दिस विल बी अ कंप्रेसिव फोर्स, एंड ऑब्वियसली दिस मटेरियल फ्लोज बिटवीन द डाइस. यस आर नो, अगेन इट इज सब्जेक्टेड टू सम कंप्रेसिव फोर्स. यस आर नो. तो एक्सट्रूजन में कंप्रेशन ही था दोनों ही, पुश एज वेल एज reaction applied by the die. But in this case the tensile force is induced, applied by externally to pull this rod, yes or no, or wire, and the compression occurs due to the die. yes or no, correct. Now diameter of the bar or rod or tube is reduced by successive drawing operation, करेक्ट है दोस्तों. यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एंटायर रिडक्शन, सपोज यू हैव अ वायर ऑफ डायमीटर, सपोज दिस इज डी नॉट, and this dot d naught is equal to 10 millimeter, and suppose you want to convert this wire in this form. yes or no, this is final diameter and which is equal to 1 millimeter. तो 10 millimeter वायर से 1 millimeter में कन्वर्जन डायरेक्टली सिंगल पास से कभी भी नहीं होगा दोस्तों, करेक्ट है. जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सक्सेसिव ड्राइंग ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी. सपोज आपको 10 मिलीमीटर से सपोज 2 मिलीमीटर रिडक्शन पॉसिबल है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से 8 मिलीमीटर में फर्स्ट रिडक्शन, फिर 8 से 6 में रिडक्शन सेकंड स्टेज होगा, फिर 6 से आप जाओगे 4 में, 4 से आप जाओगे 2 में, या फिर 2 से 1 में, करेक्ट है. तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो 5 टाइम्स रिडक्शन इज रिक्वायर्ड. यस और नो, करेक्ट है. ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली ये नहीं होता है, बट एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो कि व्हेनेवर यू वांट टू रिड्यूस अ वायर इन अ पर्टिकुलर डिजायर्ड साइज, then multiple reductions are required. This is called as successive drawing operation. Is that clear? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. जनरली इट इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, बट द टेम्परेचर राइजेस कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस. इज इट क्लियर.
ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है दोस्तों रूम टेम्परेचर परफॉर्म करेंगे, बट टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, ऐसा नो। एंड अगेन हियर वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑब्वियसली जो आप पावर सप्लाई कर रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होनी है और वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी वजह से मटेरियल जो डिफॉर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है और इवन सिग्निफिकेंट लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। ये सार नो। नाउ प्रिंसिपल इज सेम इन बोथ रॉ ड्राइंग एंड वायर ड्राइंग, बट इक्विपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट साइज प्रोडक्ट। करेक्ट, दोनों की प्रिंसिपल तो सेम है, बट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट साइज के आपको डाइस की रिक्वायरमेंट होगी। बार ड्राइंग इज टर्म यूज फॉर लार्ज डायमीटर, ये पॉइंट याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जनरली आपसे पूछा जाता है कि वायर ड्राइंग और बार ड्राइंग में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों बार जो टर्म इटसेल्फ है इसे हम यूज करेंगे फॉर लार्ज डायमीटर। करेक्ट है, अगर हमारे पास लार्ज डायमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसे हम एज ए बार ट्रीट करेंगे और वहीं, करेक्ट है, एंड इट इज जनरली अकॉम्प्लिश्ड इन अ सिंगल ड्राफ्ट ऑपरेशन। करेक्ट है, और इसे जनरली एक बार में ही ड्रॉ करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों वायर ड्राइंग के, तो यू कैन सी हियर वायर ड्राइंग इज टर्म्ड एज ए स्मॉल डायमीटर स्टॉक वायर साइज अप टू 0.03 मिलीमीटर कैन बी ड्रॉन इन द वायर ड्राइंग ऑपरेशन। तो जब भी डायमीटर सिग्निफिकेंटली लो होगा, करेक्ट है, तब हम इसे दोस्तों कहेंगे वायर। करेक्ट, एंड दिस ड्राइंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज वायर ड्राइंग प्रोसेस। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि लार्ज साइज का अगर डायमीटर का अगर आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, करेक्ट है, तो इसे आप कह दोगे बार ड्राइंग, और स्मॉल साइज के डायमीटर के वायर सॉरी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो इसे हम कहेंगे वायर ड्राइंग। Correct. And now you can see the bar drawing becomes the beginning stock has larger diameter. It is in the form of straight cylindrical. यहाँ पे देखो बार के केस में क्या होगा, ये एक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल पीस के फॉर्म में होगा, yes or no, rather than coil. करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायर ड्राइंग का जो ऑब्जेक्ट है, इनिशियल स्टॉक है, वो सिलेंड्रिकल रॉड के फॉर्म में होगा। ये सानो सिलेंड्रिकल रॉड के फॉर्म में होगा, जबकि यहाँ पे कॉइल फॉर्म में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम वायर ड्राइंग की बात करें दोस्तों, तो जो इनिशियल स्टॉक होगा वो इन द फॉर्म ऑफ कॉइल होगा। करेक्ट, मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का कॉइल फॉर्म होगा, ये सानो, जबकि यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट बार होगा। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंस है वायर ड्राइंग एंड बार ड्राइंग में। करेक्ट है दोस्तों, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा वायर ड्राइंग और वायर ड्राइंग में डिफरेंस। यस और नो, एनीवन? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वायर ड्राइंग डाई मटेरियल। करेक्ट है, डाई मटेरियल, द वेरियस डाई मटेरियल्स दैट आर यूज्ड सच एज चिल्ड कास्ट आयरन, टूल स्टील्स, टंगस्टन कार्बाइड एंड डायमंड। ये मटेरियल है दोस्तों जिससे हम डाई बनाते हैं। करेक्ट है, द कास्ट आयरन डाइज आर यूज्ड फॉर स्मॉल रन्स एंड फॉर वेरी लार्ज रन्स एलॉय स्टील्स आर यूज्ड। करेक्ट, एलॉय स्टील्स, एंड जनरली इसे हम डाई स्टील भी कह देते हैं। करेक्ट है दोस्तों, इसी को हम क्या कह देते हैं, एलॉय स्टील को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाई स्टील। इज इट क्लियर? Now, the tungsten carbide dies are used for most commonly for medium size wires and large production. करेक्ट है, और इवन आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया थोड़ा कम होगा अगर आपने मटेरियल साइंस नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो आइडिया लग जाएगा कि दोस्तों अगर हम कंपेयर करें तो टंगस्टन कार्बाइड जो डाइज होंगे, दैट वन इज मच हार्डर एंड वियर रेजिस्टेंस देन एलॉय स्टील। यस और नो, इससे ज्यादा होगा। बट अगर हम डायमंड की बात करें तो इट इज वेरी वेरी हार्ड एज कम, एंड इवन यू कैन से दिस इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ। यस और नो, बट फिर भी अगर आपको स्टील की ड्राइंग करनी है तो हार्डली इसे यूज करेंगे, क्योंकि स्टील में कार्बन की डिफिशियंसी होती है दोस्तों, और जैसे जैसे हम ऑपरेशन करते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है और हायर टेम्परेचर में कार्बन डिफ्यूज होके डायमंड से स्टील में आ जाते हैं। करेक्ट है, तो इस तरीके से जो आपका डायमंड टूल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। करेक्ट, तो वेन एवर यू परफॉर्म एनी ऑपरेशन स्पेशली फॉर स्टील, तो डायमंड को हम दोस्तों क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। करेक्ट है, डायमंड को यूज नहीं करके हम टंगस्टन कार्बाइड को यूज करेंगे। करेक्ट, you can see a tungsten carbide dies are preferred because their long life which is 2 to 3 times than alloy steel. Obviously wear resistance ज्यादा है, hardness ज्यादा है, तो इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। and very fine wires are produced by using diamond dies. वेरी फाइन वायर्स अगर आपको बनाना है दोस्तों तो आप डायमंड डाइस को यूज करोगे। इज इट क्लियर? एंड मोस्ट ऑफ द जो डाइस यूज होती है वो एलॉय स्टील की होती है। करेक्ट, एंड एलॉय स्टील के साथ साथ टंगस्टन कार्बाइड स्टील। करेक्ट, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज में आने वाली डाइज है। करेक्ट, नेक्स्ट आता है एनालिसिस। अब यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
करेक्ट है, 5 स्टार रेटिंग। और जो भी क्वेश्चन आएंगे गेट एग्जाम में, स्पेशली गेट एग्जाम में दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी टॉपिक से आएगा। करेक्ट है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहला टर्म है इन ड्राइंग, चेंज इन साइज ऑफ द वर्क इज यूजुअली गिवन बाय एरिया रिडक्शन। करेक्ट है, तो अगर मैं कहूँ एरिया रिडक्शन तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए बाई ए नॉट, यस आर नो। और ये ऑलरेडी हमने एक्सट्रूजन के केस में भी देखा था। करेक्ट है, और अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। क्या कहलाएगा ये, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, एंड दिस इज नथिंग बट ए नॉट माइनस ए बाई ए नॉट। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे ए नॉट से डिवाइड करें या ए एफ से डिवाइड करें, यहाँ पे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं और भूल जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कंपेरिजन आप हमेशा ओरिजिनल से करते हो, और जिससे कंपैरिजन करते हैं उसी को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। करेक्ट है, तो ऑब्वियसली ओरिजिनल साइज से ही हम कंपेयर करेंगे फाइनल साइज में क्या कन्वर्जन हुआ, तो हम हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, ओरिजिनल एरिया को रखेंगे। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी। करेक्ट है, जिससे कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड है जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, दैट्स इट। करेक्ट। नाउ इफ नो फ्रिक्शन एंड रिडंडेंट वर्क, नो फ्रिक्शन तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा, और रिडंडेंट वर्क की अगर हम बात करें, नो रिडंडेंट वर्क का मतलब है नो स्ट्रेन हार्डनिंग, नो स्ट्रेन हार्डनिंग। करेक्ट है, अगर यहाँ पे लिख रहा है कि नो फ्रिक्शन एंड नो रिडंडेंट वर्क मींस नो स्ट्रेन हार्डनिंग ऑकर्स, देन ट्रू स्ट्रेन्स कैन बी रिटन लाइक दिस, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए नॉट बाई ए एफ, इस तरीके से लिखना है दोस्तों। एंड इवन इंस्टेड ऑफ ए नॉट और ए एफ आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हो विथ, और यस मोर मोर थिंग है दोस्तों, यहाँ पे एल एन लगाना छूट गया। करेक्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एल एन रहेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, दिस इज एल एन ए नॉट बाई ए एफ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रू स्ट्रेन। और इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों, इट इज सिंपली रिटर्न एज डी नॉट बाई डी एफ का होल स्क्वायर। और इसी को मैं और लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एल एन डी नॉट बाई डी एफ, ये सर नो। करेक्ट, अब आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि ये कैसे आया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में इस पर्टिकुलर पार्ट्स को देखा था। करेक्ट है, तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो, इधर बाय यूजिंग एल एन ए नॉट बाई ए एफ और एल एन डी नॉट बाई डी एफ होल स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ एल एन डी नॉट बाई डी एफ। किसी भी तरीके से आप इस ट्रू स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट here we need to find out drawing stress, amount of drawing stress required for getting desired size, yes or no। तो सिंपली यहाँ पे एक empirical relation है, that is sigma m ln a naught by af, and once again you see here this is same relation as we studied in extrusion process, yes or no। जैसे आपने extrusion में स्टडी किया था, सेम यहाँ पे वही वही सेम रिलेशन है, yes or no। तो याद रखना एक्सट्रूजन एंड वॉइड ड्राइंग में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आया दोस्तों, सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा एम एल एन ए नॉट बाई ए एफ। करेक्ट, बट समटाइम्स वी हैव द स्ट्रेस फ्लो स्ट्रेसेस वैल्यू, यस आर नो, इन टर्म्स ऑफ पावर लॉ। मींस आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। अगर आपको इस तरीके से स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट मीन फ्लो स्ट्रेस, and mean flow stress is nothing but this is k epsilon to the power n upon n plus 1। इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर लोगे, and now you just put these values here, yes or no। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। या तो आपको डायरेक्ट ये सिग्मा एम की वैल्यू गिवन होगी, या आपको सिग्मा एफ इस तरीके से गिवन है, तो इस तरीके से आप मीन फ्लो स्ट्रेस कैलकुलेट करो, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट अप्लाई दिस रिलेशन फॉर फाइंडिंग ड्राइंग स्ट्रेस। एंड वंस यू गेट ड्राइंग स्ट्रेस देन यू कैन इजिली फाइंड आउट ड्राइंग फोर्स रिक्वायर्ड। और इसलिए के लिए क्या करना है, सिंपली यू कैन सी यहाँ पे आप ध्यान से देखना, हमने एक्सट्रूजन के केस में ओरिजिनल एरिया से मल्टीप्लाई किया था, yes or no। but in this drawing operation हमें क्या करना है, we need to multiply this stress with final area। क्यों फाइनल एरिया से दोस्तों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू कैन सी हियर, suppose this is your die, is it clear, and you can see here this is our wire or rod which is drawn like this। करेक्ट, कुछ इस तरीके से है दोस्तों सपोज। तो आप देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम ड्राइंग ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों,
वायर को पुल करेंगे, यस और नो, यहाँ पे हम वायर को पुल करते हैं ना कि पुश। अब यहाँ पे देखो आप फोर्स कहाँ पे अप्लाई करो, एक्सटर्नल फोर्स हम कहाँ से अप्लाई करें, ऑब्वियसली इस फाइनल एंड से, जिसका एरिया क्या होगा, एएफ, यस और नो। तो ऑब्वियसली अगर आपको लोड कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस में दोस्तों, आपको स्ट्रेस में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस में आपको इस एएफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, दिस इज द की पॉइंट। आपका अगर ये एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है तो आप ए नॉट से मल्टीप्लाई करते, और चूंकि ये वायर ड्राइंग ऑपरेशन है तो हम इसे एएफ से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल एरिया से, ये सार नो। तो इस तरीके से आप ड्राइंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट ड्राइंग पावर, करेक्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलो, ड्राइंग पावर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, किस स्पीड से हम यहाँ पे मटेरियल को पुल कर रहे हैं। वी नीड टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी, करेक्ट है। तो सिंपली क्या रिजल्ट आ जाएगा, दिस ड्राइंग फोर्स, ड्राइंग पावर कैन बी रिटन एज फोर्स, ड्राइंग फोर्स इनटू फाइनल वेलोसिटी। क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। जबकि हमने 1 सेकेंड एक्सट्रूजन में हमने क्या किया था, इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ही रैम की वेलोसिटी थी। यहाँ पे जिस स्पीड से आप मटेरियल को पुल करोगे उसी स्पीड से मटेरियल ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हमें ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया, बोलो एनीवन। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? आई थिंक, मुझे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अगर आपको डाउट, कोई कुछ किसी को कुछ भी डाउट लग रहा है तो बता दो फटाफट। एनीवन? नमन, कुशल, प्रतीक, एनीवन, सौम्य रंजन, किसी कुछ डाउट है क्या दोस्तों, बोलो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन एंड देयर वैल्यू, करेक्ट। मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन क्या हो सकता है और उसकी क्या कंडीशन है। तो कंडीशन, यहाँ पे दो अजम्पशंस लेते हैं हम दोस्तों। यस, वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड कुशल। देखो यहाँ पे क्या हम कंडीशन लेते हैं, अजम्पशंस देखो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए। परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल का मतलब है, यू कैन सी हियर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विल बी लुकिंग लाइक दिस, करेक्ट, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो इससे क्या कहेंगे हम दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज perfect plastic material. Is it clear? You can see here the stresses remain constant for any strain, yes or no, for this strain, correct. नेक्स्ट, नो फ्रिक्शन एंड नो रिडंडेंट वर्क, यस और नो। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो लुब्रिकेशन है वो आइडल लुब्रिकेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो फ्रिक्शन। आप देखो यहाँ पे इस रीजन में कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। हमने अज्यूम कर लिया कि दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। इज इट क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं है, फ्रिक्शन जीरो बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशन। हमने प्रॉपर लुब्रिकेशन किया जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा, इट इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। And no redundant work, obviously no redundant work means no strain hardening phenomena, yes or no। तो इसके लिए आइडियल कंडीशन क्या है डिफॉर्मेशन की, कि जो सिग्मा डी है दोस्तों ये सिग्मा एम के इक्वल हो जाए, करेक्ट है। सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा एम और इक्वल टू के, ये जो स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट है ये के बराबर हो जाए, करेक्ट है दोस्तों, yes or no, बोलो। क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना इज इक्वल टू जीरो, सॉरी देयर इज नो स्ट्रेन हार्डनिंग मींस स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब ये n जीरो हो गया तो k एप्सिलॉन टू द पावर जीरो अपॉन वन यही आएगा, और एप्सिलॉन टू द पावर जीरो क्या आ जाएगा, वन, ये सानो। तो सिंपल से क्या वैल्यू होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ और स्ट्रेस रिकॉर्ड फॉर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू मीन फ्लो स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट, ये आर नो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम सिंपली कह सकते हैं वी कैन गेट मैक्सिमम रिडक्शन, ये आर नो, मैक्सिमम रिडक्शन। इज इट क्लियर? एंड नाउ यू कैन सी here we have relation sigma d is equal to sigma m ln क्या आएगा दोस्तों, ये a नॉट बाई AF, हमारे पास ये रिलेशन है। हमने कहा कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो सिंपल से क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं इसका एंटी लॉग ले लूं तो सिंपली हियर वी कैन गेट ए नॉट बाई AF इज इक्वल टू ई टू द पावर वन, ये सानो। और ई टू द पावर वन की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू
एप्सिलॉन 1 की वैल्यू होती है दोस्तों 2.718. इज इट क्लियर? 2.718 ये वैल्यू है यहाँ पे a नॉट बाई एफ. बट हियर वी नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया. चलिए ये देखते हैं कैसे आएगा परसेंटेज. और ये मल्टीपल टाइम्स दोस्तों, ये सिर्फ क्वेश्चन ही यही पूछा गया, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया. करेक्ट है. तो हमारे पास ये रिलेशन क्या होता है, ए नॉट माइनस ए एफ अपॉन ए नॉट. और सिंपली हियर वी कैन राइट 1 माइनस ए एफ बाई ए नॉट. तो दोस्तों अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, इंटू 100 कर दो, इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा दोस्तों, ये सारनो. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो 1 माइनस, यहाँ पे ए नॉट बाई एफ की वैल्यू दिस है, तो ए बाई ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2.718 इंटू 100%. ये सानो. तो यहां से दोस्तों परसेंटेज रिडक्शन की वैल्यू क्या आती है, यू कैन सी हियर. तो ये वैल्यू आ रही है दोस्तों, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 63.21. ये सानो परसेंट. तो आपको मैक्सिमम रिडक्शन 63.21% ही मिल सकता है इन सिंगल पास ऑफ ड्राइंग. इससे ज्यादा आप रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों. अगर सपोज आपके पास 10 mm का वायर है, तो एक स्टेज में हम कितना रिडक्शन कर सकते हैं दोस्तों, 10 mm को 6.3 मिलीमीटर तक कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल पास रिडक्शन में. इससे ज्यादा आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे. इज इट क्लियर? तो ये जो डेटा है दोस्तों, इसे याद रखना, परसेंटेज रिडक्शन इज 63.21%. ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कम से कम 10 टाइम्स. आईएएस में करीब 5-6 बार पूछा गया, गेट में भी 2-3 बार पूछा गया, इसरो में भी पूछा गया, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. करेक्ट है. याद रखना 63.21%. दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इन एरिया. इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. फॉर रिजिड perfectly plastic material, negligible interface friction, no redundant work, theoretical maximum possible reduction in wire drawing operation is. देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 0.63. इज इट क्लियर? theoretical maximum रिडक्शन कितना मिल सकता है, 0.63 और 63%. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ड्राइंग ऑपरेशन विद कंसीडरेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड स्पेशली स्लैब मेथड. और ये रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको डेराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं ये रिलेशन बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड अभी एक आध बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली. करेक्ट है. ऑल्दो वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं देखूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना. चलिए देखते हैं क्या है. तो ड्राइंग स्ट्रेस का हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा. मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा दोस्तों, अभी इस स्टेज में इस डेरिवेशन की नीड नहीं है. जब आप अगर आईएएस का कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब मैं उस टाइम पे ये डेरिवेशन करा दूंगा, और ये डेरिवेशन आपके आईएएस में डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है. तो सिंपल से याद रखो रिलेशन. यस प्रतीक, वेरी गुड, बी आंसर इज करेक्ट. तो सिग्मा डे इज इक्वल टू सिग्मा एम 1 प्लस बी अपॉन बी 1 माइनस आर एफ बाई आर नॉट टू द पावर 2b. इज इट क्लियर? ये रिलेशन है जहां पे b क्या है दोस्तों, b इज नथिंग बट दिस इज म्यू कॉट अल्फा. अब क्वेश्चन आता है कि ये अल्फा है क्या. करेक्ट है दोस्तों. यू कैन सी हियर लाइक दिस. मैं यहाँ पे एक डाई का से डाई बना देता हूं लाइक दिस. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो, दिस एंगल, दिस इज सेमी डायंगल, दैट इज अल्फा. करेक्ट. यहाँ पे अल्फा क्या है, दिस इज सेमी डायंगल. इज इट क्लियर? अल्फा इज अ सेमी डायंगल, और सेम अल्फा एंगल इस साइड पे होगा दोस्तों. तो टोटल यहाँ पे डायंगल क्या होगा, दिस इज 2 अल्फा. तो यहाँ पे अल्फा क्या है, याद रखना, अल्फा इज ए सेमी डायंगल. इज इट क्लियर? म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वायर और वायर एंड डाइज.
करेक्ट। ये वायर और डाई के बीच का फ्रिक्शन होता है दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे जब आप ड्राइंग ऑपरेशन करोगे तो मटेरियल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक दिस यू कैन सी हियर, दिस इज वायर, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन होगा दोस्तों, यस आर नो, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर का यहाँ पे इंटरफेस बन रहा है डाई में, ये जो इंटरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट होता है, यस आर नो, इज इट क्लियर। और दिस फ्रिक्शन इज नथिंग बट दिस इज द फ्रिक्शन बिटवीन वायर एंड billet sorry wire and die interface, and you can see here r naught is nothing but this is original area of the radius and rf is a final area of the radius, करेक्ट है। ये रिलेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या यहीं पे मैं आपको एक और बता देता हूं, इट इज सिंपली इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 प्लस बी अपॉन बी, और यहाँ पे सिग्मा नॉट की जगह मैंने लिखे से सिग्मा एम लिख देता हूं दोस्तों, मीन फ्लो स्ट्रेस, दिस इज मीन फ्लो स्ट्रेस, एंड अगेन यू कैन, एंड इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर एफ ओपन और नॉट, यहाँ पे आर एफ ओपन और नॉट की जगह क्या लिख सकते हो दोस्तों, हियर वी सिंपली वी कैन राइट ईदर ए एफ बाई ए नॉट टू द पावर बी, या तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं या फिर हम रिलेशन लिख सकते हैं सिग्मा एम 1 प्लस बी अपॉन बी, क्योंकि इस तरीके के रिलेशन आपको डायरेक्टली मिलेंगे एग्जाम में, और आपको आइडिया होना चाहिए कि ये रिलेशन है क्या। 1 माइनस ए एफ बाई ए नॉट की जगह लिख सकते हैं, यहाँ पे आर एफ बाई आर नॉट तो लिखा था, इन टर्म्स ऑफ अगर हम डायमीटर लिखे तो क्या आएगा दोस्तों, डी एफ बाई डी नॉट टू द पावर 2b, इज इट क्लियर। कुछ इस फॉर्म में भी हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं, ये सामने, तो दोनों ये तीनों ही फॉर्म देखो, यहाँ पे एक रिलेशन हमने ये बताया, दूसरा ये बताया हमने, तीसरा ये बताया, ऑल दीज थ्री रिलेशंस आर करेक्ट, किसी भी फॉर्म में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नाउ इफ यू नीड टू फाइंड आउट ड्राइंग लोड, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, F इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा m टाइम्स 1 प्लस बी अपॉन बी 1 माइनस सिग्मा अपॉन और नॉट टू द पावर 2b इंटू ए एफ, ये सानो इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल सा स्ट्रेस में फाइनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा ड्राइंग लोड, और वंस यू गेट द ड्राइंग लोड देन यू जस्ट मल्टीप्लाई विद फाइनल velocity, you can get the power, yes or no, drawing power required, yes or no, correct। तो ये इतना ही एनालिसिस पार्ट है दोस्तों। इवन नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, इन अ वायर ड्राइंग ऑपरेशन डायमीटर ऑफ द स्टील वायर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर में रिडक्शन करना है, तो सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ डी नॉट इज इक्वल टू 10 mm एंड डी एफ इज इक्वल टू 8 mm, correct। The mean flow stress of the material is given, that is sigma m is equal to 400 megapascal. The ideal force required for drawing by ignoring friction and redundant work, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ड्राइंग फोर्स निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो सिंपल से रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर दूं मैं, देखो यहाँ पे ड्राइंग फोर्स F इज इक्वल टू सिग्मा डी इंटू ए एफ, ऐसे लिख सकते हैं, और सिग्मा डी का रिलेशन क्या है, सिग्मा एम एल एन ए नॉट बाई ए एफ इंटू ए एफ, ये सानो। अब इनमें इसकी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। सिग्मा एम की वैल्यू दोस्तों क्या है 400 एल एन, ए नॉट बाई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, डी नॉट बाई डी एफ को होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख दू 10 बाई 8 का होल स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, इंस्टेड ऑफ डी एफ हियर वी कैन राइट 8 स्क्वायर, ये सानो। इससे आप कैलकुलेट करो देन यू कैन गेट द आंसर, ये सानो। देखो क्या आता आंसर, 400 एल एन, 400 इंटू 2 कर दो, इंटू एल एन 10 बाई 8 इंटू 5 बाई 4 इंटू 64, ये दोस्तों आ जाता है 8.97 किलो न्यूटन, 8.975 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आती है दोस्तों, करेक्ट। तो आई थिंक सबका यही आंसर आ रहा है क्या प्रतीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस आर नो। ओके नाउ यू कैन सी 8 2011 का क्वेश्चन है ये,
In a multi-pass drawing operation, a round bar of 10 mm diameter and 100 millimeter length is reduced in cross section by drawing it successfully through a series of 7 dies. यहाँ पे ध्यान देना, तो कितनी डाई यूज करें हम? 7 dies यूज करें of the decreasing exit diameter. During each of the drawing these operations, the reduction in cross section area is 35%. हर एक बार 35% आप रिड्यूस करोगे, करेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग ईच ऑफ द ड्रॉइंग ऑपरेशंस द रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया इज 35%. द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 200 मेगापास्कल. इग्नोर स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहला है द टोटल ट्रू स्ट्रेन अप्लाइड एंड द फाइनल लेंथ क्या होगा, दूसरा है नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एंड रिडंडेंट वर्क द फोर्स क्या होगा। करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं ट्रू स्ट्रेन की बात करूं, ट्रू स्ट्रेन तो मुझे क्या चाहिए? True strain is nothing but it is simply written as ln d naught by df. यही चाहिए आपको, ये सानो ln d naught by df. करेक्ट। करेक्ट, डी नॉट बाई डी एफ का होल स्क्वायर, ये सानो कुछ ऐसे रिलेशन होने चाहिए। देखो देख लेते हैं हम प्रीवियसली। करेक्ट है दोस्तों, यू कैन सी हियर ए नॉट बाई एफ, करेक्ट, डी नॉट बाई डी एफ होल स्क्वायर, यस करेक्ट, करेक्ट है ये, यस प्रतीक, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें रिलेशन मिल गया। अल्टीमेटली हियर वी नीड टू फाइंड आउट डीएफ। हमें क्या पता करना है? डीएफ की वैल्यू पता करना है। वंस यू गेट डीएफ देन यू कैन इजिली फाइंड आउट ट्रू स्ट्रेन। करेक्ट, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है फाइनल लेंथ। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी वी नॉट इज इक्वल टू वी एफ, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ए नॉट टाइम्स ऑफ एल नॉट इज इक्वल टू ए एफ इंटू एल नॉट, ये सॉरी एल एफ। करेक्ट, तो अगर आपको डीएफ पता चल जाए तो एल एफ भी इजिली पता चल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले डायमेंशन देख लो। 10 मिलीमीटर डायमीटर इनिशियल डायमीटर और लेंथ 100 मिलीमीटर है। करेक्ट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यू कैन सी डी नॉट इज इक्वल टू 10 mm, एल नॉट इज इक्वल टू 100 mm एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, इसकी अगर मैं बात करूं तो 35% ईच ड्रॉ में रिड्यूस हो रहा है। एंड नंबर ऑफ रिडक्शन, नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो टोटल है 7 स्टेजेस, 7 टाइम्स रिड्यूस करना है। करेक्ट है, तो सिंपल से यहाँ पे देखो क्या है, एक सिंपल से रिलेशन पहले देखो कि डी एफ वन आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन, क्या होगा दोस्तों? तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एरिया आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन, ए एफ आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन 30% रिड्यूस हुआ तो रिमेनिंग क्या हो जाए? 65%। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.65 टाइम्स ऑफ ए नॉट। तो इसे मैं लिख देता हूँ ए एफ वन इज इक्वल टू 0.65 टाइम्स ऑफ ए नॉट, ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट ए एफ टू आफ्टर सेकेंड स्टेज रिडक्शन, तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? 0.65 टाइम्स ऑफ ए एफ वन, और ए एफ वन की वैल्यू क्या है? 0.65 इंटू 0.65 इंटू ए नॉट, यस आर नो? करेक्ट, तो सिंपल से क्या आ गई है, अगर मैं इस फैक्टर को 0.65 को चलो एज इट इज रहने देते हैं, क्या गई? 0.65 स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए एफ, सेकेंड स्टेज रिडक्शन है। तो ऐसे अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो आफ्टर सेवेंथ स्टेज रिडक्शन हमें क्या मिलने वाला है? 0.65 टाइम्स 7 टू द पावर 7 इंटू, यस दिस इज नॉट ए एफ, ये ए नॉट है। ये दोस्तों समझ में आ रहा है कैसे लिख पा रहा हूं मैं? क्या हो जाएगा? 0.65 टू द पावर 7 टाइम्स ऑफ ए नॉट। अब आप मुझे बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं? करेक्ट, क्योंकि मैं एवरी टाइम कैलकुलेट नहीं करूंगा, है ना, मैं पहले एक स्टैंडर्डाइज रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूं। तो अब आप मुझे बताओ ये स्टेज समझ में आया कि नहीं? एनीवन? प्रतीक, ये समझ में आया क्या? कैसे हमने लिख दिया कि सेवेंथ स्टेज रिडक्शन जो होगा
वो 0.65 टू द पावर 7 टाइम्स ऑफ ए नॉट होगा, ये सर करेक्ट है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज रिडक्शन लिखा तो 1 आया, सेकंड स्टेज रिडक्शन लिखा तो 2 आया, तो सेवंथ स्टेज रिडक्शन में ऑब्वियसली 7 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, AF7 divided by A naught, this is equal to 0.65 times 7, ये सारा 0.65 to the power 7। तो अब अगर मुझे ट्रू स्ट्रेन निकालना तो मैं क्या लिखूंगा, ln सिंपली इट कैन बी रिटन एज A नॉट बाई AF, ये सामनो। अब आप सोच रहे हो सर ये A नॉट बाई AF कैसे लिख देते हैं बार बार, चलो मैं इसके लिए बता देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि जो ट्रू स्ट्रेन होगा इट कैन बी रिटन एज LF बाई L नॉट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सामनो। अब आपको पता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी V नॉट इज इक्वल टू VF, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो A नॉट L नॉट इज इक्वल टू AF इंटू LF। तो अल्टीमेटली LF बाई L नॉट की वैल्यू क्या आएगी, इट इज सिंपली रिटन एज A नॉट बाई AF। करेक्ट है दोस्तों। तो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ एरिया क्या लिख सकते हैं, A नॉट बाई AF, ये सार नो। और यहाँ पे AF यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे सेवेंथ स्टेज रिडक्शन है, 7 बार रिडक्शन है, तो टोटल स्ट्रेन क्या आ जाएगी, LN, यहाँ पे रिजल्ट ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल स्ट्रेन आफ्टर 7 स्टेज रिडक्शन, इसलिए मैंने इसे एप्सिलॉन 7 लिख दिया। करेक्ट, तो ये क्या आएगा दोस्तों, LN A नॉट बाई AF, A नॉट बाई AF7, करेक्ट टू दी, सॉरी करेक्ट, तो ये रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा ln 1 डिवाइडेड बाई 0.65 टू द पावर 7, या सिंपली मैं होल टू द पावर 7 भी लिख सकता हूँ, यस आर नो, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, या चलो मैं इसको नेक्स्ट स्टेज में लिख दूंगा। आपको यहाँ पे पता है AF7 अपॉन A नॉट, जिसकी वैल्यू 0.65 टू द पावर 7 है, जबकि यहाँ पे हमें क्या लेना है, A नॉट बाई AF7। तो सिंपल सा ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.65 टू दी पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं। या सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 7 करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 6.65 टू दी पावर 7, ऐसे लिख सकता हूँ। यस आर नो, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो तो कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने से दोस्तों आपको वैल्यू मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट -0.47। करेक्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यू आ रही है, जो मेरी वैल्यू आ रही है 3.015 आ रही है। यस प्रतीक, 3.015, दिस इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। और नेक्स्ट आपको पता क्या करना था, फाइनल लेंथ, यस और नो। चलो तो यहाँ पे फाइनल लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए नॉट इंटू एल नॉट इज इक्वल टू ए एफ इंटू एल एफ, ये रिलेशन अप्लाई कर दें, तो एल एफ क्या आ गया दोस्तों, ए नॉट, ए नॉट आपको पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए नॉट बाई ए एफ, डायरेक्ट लिख दो, इंटू एल एफ, सॉरी एल नॉट, करेक्ट। यहाँ पे देखो ए नॉट बाई ए एफ बाई ए नॉट आपको गिवन है आफ्टर सेवेंथ स्टेज रिडक्शन, करेक्ट है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6, सॉरी ए नॉट बाई ए एफ 7 क्या आ जाएगा, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ए एफ 7, क्योंकि आफ्टर 7 स्टेज रिडक्शन चाहिए। तो क्या आएगा दोस्तों, ए नॉट बाई एफ 7, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 0.65 टू द पावर 7 इंटू एल नॉट, दैट इज 100। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों,
2039 मिलीमीटर, करेक्ट, 2039 मिलीमीटर, या सिंपल हम कह सकते हैं 2.39 मीटर। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है, 3 यस 2039, करेक्ट। तो सबसे क्लोज आंसर है ऑप्शन सी। तो आई थिंक दोस्तों यही आंसर आ रहा है क्या आप सभी का, सी दैट इज 3.02 एंड 2043। यस आर नो, एनीवन? प्रत्येक आ रहा है यही आंसर। अब नेक्स्ट आता है नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एंड रिडंडेंट वर्क, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग द बार थ्रू द फर्स्ट डाई इज। आफ्टर फर्स्ट डाई आपको पता करना है कि ड्राइंग फोर्स क्या होगा। तो आफ्टर फर्स्ट डाई, यहाँ पे देखो आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन अगर हम बात करें दोस्तों, आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ए एफ वन इज इक्वल टू 0.65 टाइम्स ऑफ ए नॉट, डायरेक्टली लिख सकता हूँ। मुझे ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमें चाहिए ही। अब देखो हम ड्राइंग फोर्स अगर लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, सिग्मा एम एल एन ए नॉट बाई ए एफ, ये सानो। और यहां से ए नॉट बाई ए एफ की वैल्यू क्या आएगी, 1/0.65, ये सानो, इंटू ए एफ, ये सानो। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहीं से यहीं आंसर मिल जाएगा। सिग्मा एम की वैल्यू गिवन है, यस 200 मेगा पास्कल, इंटू एल एन, ए नॉट बाई ए एफ की वैल्यू है 1/0.65, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इंटू ए एफ की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0.65 टाइम्स ऑफ ए नॉट। तो 0.65 टाइम्स ऑफ ए नॉट, और ए नॉट हमें पता है दैट इज 5/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फोर्स मिल जाएगा। अब इसी में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किलो न्यूटन में आंसर मिल जाएगा। देखो क्या आता है इसकी वैल्यू, एनीवन? चलो मैं चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे आ रही है वैल्यू 4.399 किलो न्यूटन, 4.399 किलो न्यूटन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये आंसर आ गया दोस्तों डी सबका। ये आपको समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम? यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या करें कि नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन एंड रिडंडेंट वर्क, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग द बार थ्रू फर्स्ट डाई, मतलब आफ्टर फर्स्ट रिडक्शन आपको बताना है, करेक्ट है। तो मुझे जो भी डायमेंशन लेने हैं वो फर्स्ट रिडक्शन वाले लेने हैं। तो ए एफ वन हमें पता है 0.65 टाइम्स ऑफ ए नॉट होगा, और कैसे आएगा हमने प्रीवियसली बता ही दिया था जब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। तो आई थिंक ये समझ में आ गया दोस्तों, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डेटा एंट्री टाइप, सॉरी ये कॉमन डेटा टाइप क्वेश्चन था ये, करेक्ट है। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2008 का। 10 mm diameter annealed steel wire is drawn through a die speed of 0.5 meter per second to reduce diameter 20%. The yield stress of the material is to 800 megapascal. यहाँ पे क्या क्या दिया है, वेलोसिटी आपको दी हुई है दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, एरिया में सॉरी डायमीटर में रिडक्शन बोल रहा है, रिड्यूस द डायमीटर बाय 20%, मतलब df इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ डी नॉट होगा, करेक्ट है। और डी नॉट ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, डी नॉट इज इक्वल टू 10 mm। तो सिंपली चलो मैं लिख ही देता हूँ, डी एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा, 8 mm। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज गिवन दैट इज सिग्मा m इज इक्वल टू 800 मेगा पास्कल। क्या निकालना है, नेगलेक्ट फ्रिक्शन इंस्टेंट हार्डनिंग, द स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा m एल एन ए नॉट बाई ए एफ को, ए एफ ये लिख सकते हैं, या इसी की जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, आप समझ जाना। 800 इंटू 2 इंटू एल एन, ए नॉट बाई एफ की जगह डी नॉट बाई डी एफ लिख दो मैं, ये सानो, तो 10/8। देखो क्या आंसर आएगा, ये समझ में आया कैसे लिख दिया?
इंस्टेड ऑफ ए नॉट बाई एफ, चलो मैं यहाँ पे रिलेशन ही चेंज कर देता हूँ, डोंट वरी. इंस्टेड ऑफ दिस हियर वी कैन राइट सिग्मा एम टाइम्स 2 into ln d नॉट बाई डी एफ. यही रिलेशन आएगा, ये सानो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. यहाँ पे इससे सारे 357, इसकी वैल्यू आ रही दोस्तों 357 मेगा पास्कल. करेक्ट ऑप्शन इज बी. करेक्ट. नेक्स्ट द पावर रिक्वायर्ड. अब पावर के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स. तो सिंपल से देखो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू फाइनल वेलोसिटी. करेक्ट. फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए? ड्राइंग स्ट्रेस सिग्मा डी इंटू ए एफ इंटू वी एफ. और सिग्मा डी क्या है यहाँ पे दोस्तों? 357 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है. और फाइनल एरिया क्या है? पाई बाई 4 इंटू 8 स्क्वायर. और स्पीड दी हुई है दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड. ये लो 0.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है. और वन मोर थिंग, यहाँ पे इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा किलो वॉट. करेक्ट. तो इसकी इसकी वैल्यू आ रही है 8.975 किलो वॉट. करेक्ट, ये आंसर आ रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो अब देखो यहाँ पे कितने सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं ना, यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ खास स्ट्रेस नहीं देना है. करेक्ट. सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल सिंपल रिलेशंस है. आप इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. ऐसा नो, यहाँ पे ऐसी कोई इशू नहीं आने वाला. करेक्ट है. और सेम यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया था गेट 2015 में, चलिए इसको देख लेते हैं. करेक्ट है. ये क्वेश्चन क्या कहता है? इन टू स्टेज वायर ड्राइंग ऑपरेशन द फ्रैक्शनल रिडक्शन रेशियो ऑफ चेंज इन क्रॉस सेक्शन टू एरिया टू इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया इन द फर्स्ट स्टेज इज 0.4. मतलब AF1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा ही, ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ. यहाँ पे देखो क्या लिखा है. फर्स्ट स्टेज रिडक्शन में क्या हो रहा है? फ्रैक्शनल रिडक्शन इन एरिया और रेशियो ऑफ चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द इनिशियल एरिया. मतलब यहाँ पे आप कह रहा है कि ए नॉट माइनस AF1 डिवाइडेड बाई ए नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.4. इसका मतलब यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि AF1 1 माइनस AF1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0.4. तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे, फाइनली सॉल्व करोगे तो AF1 की वैल्यू आएगी 0.6 टाइम्स ऑफ ए नॉट. ये बताता है कि 40% रिड्यूस हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 60%. तो फाइनल एरिया आफ्टर फर्स्ट स्टेज रिडक्शन दैट इज 0.6 टाइम्स ऑफ ए नॉट. द फ्रैक्शनल रिडक्शन इन द सेकंड स्टेज इज 0.3. द ओवरऑल फ्रैक्शनल रिडक्शन क्या होगा? अब यहाँ पे देखो AF2, या मैं इसको भी सेम एज इट इज लिख देता हूँ. देखो AF1 इसके लिए तो ओरिजिनल हो गया, माइनस AF2 डिवाइडेड बाई AF2 इज इक्वल टू 0.3 है यहाँ पे. जब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा दोस्तों? सॉरी, यहाँ पे AF1 होगा नॉट 2. करेक्ट. तो ये देखो क्या आएगा? 1 माइनस AF2 बाई AF1 इज इक्वल टू 0.3. और इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे रिलेशन मिलेगा AF2 इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ AF1. इज इट क्लियर? अब आपसे पूछ रहे हैं तो ओवरऑल फ्रैक्शनल रिडक्शन क्या है? ओवरऑल फ्रैक्शनल रिडक्शन क्या लिख सकते हैं हम? ओवरऑल फ्रैक्शनल रिडक्शन, इट इज सिंपली रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ए नॉट माइनस AF2 डिवाइडेड बाई ए नॉट. ये आर नो, यही तो होगा. और यहाँ पे ए नॉट माइनस AF2. AF2 क्या है? 0.7 टाइम्स ऑफ AF1. या इसी की जगह कह सकते हैं 0.7 इंटू AF1 की वैल्यू यहाँ से 0.6 टाइम्स ऑफ ए नॉट है, तो 0.6 टाइम्स ऑफ ए नॉट. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ AF2 की वैल्यू 0.7 इंटू 0.6 इंटू ए नॉट. यस आर नो? 0.7 इंटू 0.6 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई
ए नॉट। अब बेसिक, ये आप बेसिक मैथमेटिक्स है दोस्तों और कुछ नहीं, यहाँ पे कोई खास रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे सिंपल से कैंसिल आउट हो जाएगा सब ए नॉट से ए नॉट, तो 1 माइनस 0.7 इंटू 0.6, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा 0.58, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 0.58, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यस प्रतीक, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यस आर नो। करेक्ट है। तो दोस्तों इस ड्राइंग ऑपरेशन में बस इतना ही है, करेक्ट है। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर देना, करेक्ट है। और दूसरा, कमेंट करके जरूर मुझे बताया करो कि आपको लेक्चर कैसे लगा, करेक्ट है दोस्तों। और साथ में शेयर करना ही मत भूलना, ठीक है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, करेक्ट है। कहीं से किसी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला, करेक्ट। और लाइक करना तो मत ही भूलना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। और दोनों ही टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम इससे डायरेक्टली चैट भी कर सको, साथ में आपको नोट्स भी एवरीडे मिल सके, करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करें। एनीवन? प्रतीक, किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर है तो मुझे बता दो। एनीवन? कुछ भी डाउट हो, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, करेक्ट है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल से रिलेशन है, सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। सर व्हेन यू विल स्टार्ट मैकेनिक्स? जोसेफ, पहले आप से 7 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जिसमें मैंने सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट किया था, आप उसको देख लो। और उसको मैंने इसलिए स्टार्टिंग में अभी पढ़ा दिया था, जिससे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और जो आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वहां पे आपको कई बार सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नीड होती है, तो वो आपसे बन जाए, करेक्ट है। तो इसलिए मैंने वो 7 लेक्चर्स वहां पे लिए थे और उनको कंप्लीट किया था। आपने अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके देख लो। और रिमेनिंग पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में, काफी बाद में, है ना, दिसंबर के अराउंड, करेक्ट। या मे भी हो सकता है, दिसंबर तो नहीं कह रहा, सितंबर में स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, है ना, सितंबर में, करेक्ट है। फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी होगा कि पहले मैं मिस मेटल, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करूं, और जब ये कंप्लीट होगा देन फिर हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करें, आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा दोस्तों। यहीं पे मैं सेशन को एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।